Hello students, this is S.K. Sukla. In today's class also, I am going to continue with the same topic, common mistakes that we make in our day-to-day conversation or writing or wherever we use these expressions. So let's start our class. The first such expression that I am going to discuss today is your separation. Your separation. Your separation is somewhat a wrong expression. If you are separating from someone, अगर आप किसी से अलग हो रहे हैं तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि your separation is going to hurt me. Your separation is incorrect. The correct expression here should be is separation from you. Separation from you. If I say your separation is unbearable, this should not go like this. It should go like this. Separation from you is going to hurt me. A separation for you is unbearable. So separation from you is the right expression here. Let's see the next one. This is a commonly used expression. Most of us make mistake while we speak or write. Let's see. A bachelor degree. If you have to say that I have a bachelor degree, so a bachelor degree is incorrect. What should be the correct expression then? The correct expression should be I have a bachelor's degree. So correct expression is bachelor's degree. अगर आपको किसी से कहना है कि मेरे पास बैचलर की डिग्री है, so you cannot say I have a bachelor degree. I have a bachelor's degree. Same goes with master. If you write, I have a master degree. I have a master degree. So a master degree is incorrect also. Here also you can correct yourself by saying, I have a master's degree. I have a master's degree. So this is the correct expression. Let's see the next expression. अगला एक्सप्रेशन जैसे मेरा था योर सेपरेशन, इस एक्सप्रेशन पे ये योर फेवर अगर आपको किसी ने मदद की है, इफ समबडी हैज हेल्प यू, सो यू से दैट योर फेवर, उस हेल्प को आप कहेंगे कि आपका फेवर है. तो योर फेवर इज एन इनकरेक्ट एक्सप्रेशन. द करेक्ट एक्सप्रेशन इज फेवर फ्रॉम यू. फेवर फ्रॉम यू. या एक और आप इसकी जगह यूज कर सकते हैं फेवर ऑफ यू. फेवर ऑफ यू. सो दिस इज करेक्ट. Either you can say favor from you or favor of you. So your favor is an incorrect expression. Both these expressions are correct. Let's move to the next one. ये भी अगला जो है ये भी इसी तरीके का है. अगर आपने कहीं लिखा है your mention is also incorrect. The correct expression will be mention of you. Mention of you. This is correct. So let's move to the next expression that we will be discussing here. I am teaching these common mistakes because these are equally useful for students as well as students preparing for competitive exams, and it can be also used by common people who use English in their day-to-day lives. So that is why I am focusing on common mistakes nowadays. So let's move to the next expression. जहां मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, इसको देखिए. Take a look at this expression. A fresh basket of flowers. A fresh basket of flowers. This expression looks good. But if you closely look at it, you will find that you are mentioning the basket to be fresh. आप डिनोट कर रहे हैं कि
बास्केट जो है ये फ्रेश है, बट आपको डिनोट करना है कि फ्लावर्स जो है ये फ्रेश है. सो करेक्ट एक्सप्रेशन वुड बी अ बास्केट ऑफ फ्रेश फ्लावर्स. A basket of fresh flowers. So this is the correct expression. So let's move to the next one. एक और करेक्ट एक्सप्रेशन है, इसको जरा सा इनकरेक्ट एक्सप्रेशन जनरली हम यूज करते हैं, इसको देखिए. मैंने पास में इस एक्सप्रेशन को लिखा है इंटर्ड और कॉट द ट्रेन, यानी ट्रेन को पकड़ना. सो ट्रेन को पकड़ने के लिए हमारे पास इससे अच्छा एक्सप्रेशन है. इनफॉर्मल वे में आप कह सकते हैं कि आई कॉट द ट्रेन, बट इफ यू वांट टू बी फॉर्मल, इफ यू वांट टू बी करेक्ट, द करेक्ट एक्सप्रेशन शुड बी बोर्डेड. आई बोर्डेड द ट्रेन. तो हम ट्रेन को बोर्ड करते हैं. सो दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेशन, बोर्डेड द ट्रेन. दिस इज incorrect and this one is right. So let's move to the next expression. इस एक्सप्रेशन को देखिए. all sorts of entertainments. All sorts of entertainments. This expression also looks correct, but if you take a closer look at it, the word entertainments, take a closer look at it. Entertainment पे ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि entertainment जो है एक uncountable noun है, और जितने भी uncountable noun होते हैं, exceptions हैं, पर ज्यादातर uncountable noun जो होते हैं हमेशा singular form में होते हैं. इसलिए your correct expression would not be this. Your correct expression would be all sorts of entertainment. So this is the right expression. So let's move to the next one. एक और इसी तरीके का है एक्सप्रेशन, इसको देखिए. The new equipments. This expression also looks correct, but this expression is not correct simply because here also equipment is a noun that is uncountable, and most of the time it remains in singular form, or it should be in singular form rather. Correct expression would be the new equipment. तो इक्विपमेंट के साथ हम इक्विपमेंट को कभी भी प्लूरल फॉर्म में हम नहीं लिखेंगे. लेट्स सी द नेक्स्ट एक्सप्रेशन. इस एक्सप्रेशन को देखिए. ये एक सेंटेंस के रूप में ही मैं लिख रहा हूं. ये एक्सप्रेशन है माई फिंगर्स लॉस्ट फीलिंग. इस एक्सप्रेशन के द्वारा ये कन्वे किया जा रहा है कि फिंगर्स में कोई फीलिंग नहीं है, फिंगर जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है. तो फिंगर में अगर कोई फीलिंग नहीं है, सेंसेशन नहीं हो रहा है किसी तरह का, तो यू कैनॉट से माई फिंगर लॉस्ट फीलिंग. यू कैन से द करेक्ट एक्सप्रेशन इज माई fingers went numb. This is the right expression. My fingers went numb. Let's move to the next one.
मैंने एक छोटा सा एक्सप्रेशन यहां लिखा है, कंपटीशन की तैयारी करने वाले या स्कूल स्टूडेंट्स इससे अवेयर होंगे पहले से। एवरी स्टूडेंट्स, एवरी एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, तो इसके बाद आने वाला नाउन जो होना चाहिए वो हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। सो करेक्ट एक्सप्रेशन वुड बी एवरी स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट। सिर्फ एवरी नहीं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स हैं, जितने डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं, ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, सबके बाद आने वाला नाउन जो होगा ये सिंगुलर होगा। लेकिन कभी कभी इनके बाद आने वाला नाउन प्लूरल भी हो सकता है। एक ऐसे ही सिचुएशन की बात करने जा रहा हूं मैं। तो ये जो मैंने बताया उसी को बताने के पहले मैंने ये आपको बता दिया। जरा इस एक्सप्रेशन को देखिए। अगर मैं लिखूं एवरी 6 आवर, अगर कहीं लिखा हुआ है एवरी 6 आवर, तो हमारे रूल के हिसाब से कि एवरी के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होता है, तो ये आवर यहां पे सिंगुलर लग रहा है, बट यहां पे ये सिंगुलर नहीं होगा। दिस इज एन इनकरेक्ट एक्सप्रेशन। द करेक्ट एक्सप्रेशन वुड बी एवरी 6 आवर्स, एवरी 6 आवर्स। तो दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेशन। तो ये एक ऐसा पॉसिबल सिचुएशन है जहां एवरी के बाद प्लूरल नाउन आ सकता है। तो ऐसा क्यों हुआ? पहला रीजन ये है कि एक से बड़ी कोई भी संख्या अगर लगी हो तो उसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है। लेकिन यहां पे हम इस तरीके से इसको नहीं समझेंगे। हम 6 आवर को एक टाइम के यूनिट के रूप में ट्रीट करेंगे, और जब 6 आवर्स को एक टाइम के एक यूनिट की तरह ट्रीट किया जाएगा तो ये सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा। तो यहां भी एवरी के बाद आने वाला ये जो टाइम यूनिट है ये सिंगुलर ही है, बस दिखने में ये प्लूरल लग रहा है। So let's move to the next expression. This is the expression I wanted to discuss here. इस एक्सप्रेशन को देखिए। ये एक्सप्रेशन मैंने लिखा है टू एस्टैब्लिश अ स्टोर। अगर कोई एक स्टोर स्टार्ट करने जा रहा है तो उसके लिए ये एक्सप्रेशन टू एस्टैब्लिश अ स्टोर, ही इज गोइंग टू एस्टैब्लिश अ स्टोर, या आई हैव एस्टैब्लिश अ स्टोर, या शी इज एस्टैब्लिशिंग अ स्टोर। तो एस्टैब्लिश यहां पे इस कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं होगा। यहां पे करेक्ट एक्सप्रेशन होगा टू ओपन अ स्टोर, टू ओपन अ स्टोर। अगर हम किसी स्टोर को स्टार्ट करते हैं तो वर्ड ओपन यूज किया जाता है। एस्टैब्लिश जो है वो इंस्टीट्यूशंस के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। अगर आप कोई इंस्टीट्यूशन को स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां पे आप एस्टैब्लिश यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टोर शुरू कर रहे हैं तो द राइट वर्ड वुड बी टू ओपन अ स्टोर। सो दिस इज द राइट एक्सप्रेशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ये जो एक्सप्रेशन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इसको मैं पूरा सेंटेंस में डिस्कस करने जा रहा हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स जनरली ये मिस्टेक करते हैं। टेक अ लुक एट इट। I have done my graduation in 2005। अगर किसी लड़के से मैं ये सवाल पूछूं कि when did you do your graduation, और उसके रिस्पॉन्स में अगर वो कहता है कि I have done my graduation in 2005, जनरली मैंने स्टूडेंट को ये कहते हुए देखा है I have done my graduation in 2017, like that। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये सेंटेंस जो आपने यूज किया है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, और प्रेजेंट परफेक्ट में आपने एक टाइम को मेंशन करने वाला एक फ्रेज यूज किया है। ये एक एडवर्ब फ्रेज है जो टाइम को डिनोट कर रहा है और पास्ट के टाइम को डिनोट कर रहा है। तो जब ये क्लियरली पास्ट के टाइम को डिनोट कर रहा है तो इसके साथ हम पास्ट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। जब भी पास्ट के समय को मेंशन कर दिया जाता है तो सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट का यूज किया जाता है। सो द करेक्ट सेंटेंस वुड बी I did my graduation in 2005। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि I have done my graduation। अगर आप टाइम पास्ट के टाइम को मेंशन नहीं करते हैं तो सिंपली यू कैन से I have done my graduation, I have done my post graduation, like that। लेकिन जैसे ही पास्ट के टाइम को मेंशन कर देते हैं तो वहां पास्ट टेंस प्ले में आ जाता है।
सो पास्ट यहां पे पास्ट का टाइम यूज किया गया इन 2005, जिसकी वजह से ही ये गलत हुआ है। और जब ऐसा हो जाएगा, पास्ट का टाइम मेंशन कर देंगे, तो हम सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। सो करेक्ट एक्सप्रेशन वुड बी आई डिड माई ग्रेजुएशन इन 2005। Again, I am not going to make this video too lengthy. I end here. I hope this video would be informative for you. If you like the video, just subscribe my channel so that you can see more and more videos like that. I'm going to continue with this common mistakes. I have abundance of such expressions with me. So see you in the next class. Thank you.